खेत के बीच में एक पेड़ खड़ा है। There is a tree standing in the middle of the field. खेत के बीच में एक पेड़ खड़ा है। There is a tree standing in the middle of the field. मैं खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। I was standing by the window looking outside. मैं खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। I was standing by the window looking outside. ध्वज इमारत की छत पर खड़ा है। The flag is standing on top of the building. ध्वज इमारत की छत पर खड़ा है। The flag is standing on top of the building. शिक्षक ने छात्रों से खड़ा होने को कहा। The teacher asked the students to stand up. शिक्षक ने छात्रों से खड़ा होने को कहा। The teacher asked the students to stand up. धोने के बाद शर्ट पीली हो गई है। The shirt is yellow now after washing. धोने के बाद शर्ट पीली हो गई है। The shirt is yellow now after washing. बोतल का पानी पीला हो गया है। The water in the bottle has turned yellow. बोतल का पानी पीला हो गया है। The water in the bottle has turned yellow. धूम्रपान की वजह से मेरे दांत पीले हो रहे हैं। My teeth are turning yellow because of smoking. धूम्रपान की वजह से मेरे दांत पीले हो रहे हैं। My teeth are turning yellow because of smoking. पत्तियां पतझड़ में पीली हो गई। The leaves turned yellow in autumn. पत्तियां पतझड़ में पीली हो गई। The leaves turned yellow in autumn. आम पीले हो गए हैं और पक गए हैं। The mangoes have turned yellow and ripe. आम पीले हो गए हैं और पक गए हैं। The mangoes have turned yellow and ripe. बल्ब जलने के बाद कमरे में रोशनी पीली हो गई। The light in the room turned yellow when the bulb burned out. बल्ब जलने के बाद कमरे में रोशनी पीली हो गई। The light in the room turned yellow when the bulb burned out. पसीने की वजह से सफ़ेद शर्ट पीली हो गई है। The white shirt has turned yellow because of sweat. पसीने की वजह से सफ़ेद शर्ट पीली हो गई है। The white shirt has turned yellow because of sweat. उसने बैग से अपना फ़ोन निकाला। She took out her phone from the bag. उसने बैग से अपना फ़ोन निकाला। She took out her phone from the bag. उसने नई कार खरीदने के लिए कर्ज लिया। She took out a loan to buy a new car. उसने नई कार खरीदने के लिए कर्ज लिया। She took out a loan to buy a new car. उसने एक पेंसिल निकाली और चित्र बनाने लगा। He took out a pencil and started drawing. उसने एक पेंसिल निकाली और चित्र बनाने लगा। He took out a pencil and started drawing. क्या तुम दराज से पुराने कागजात निकाल सकते हो? Can you take out the old papers from the drawer? क्या तुम दराज से पुराने कागजात निकाल सकते हो? Can you take out the old papers from the drawer? मुझे अपनी पासपोर्ट दराज से निकालनी है। I need to take out my passport from the drawer. मुझे अपनी पासपोर्ट दराज से निकालनी है। I need to take out my passport from the drawer. मुझे सर्दी के कारण खांसी हो रही है। I have a cough because of the cold. मुझे सर्दी के कारण खांसी हो रही है। I have a cough because of the cold. वह मीटिंग के दौरान खांस नहीं पा रही थी। She could not stop coughing during the meeting. वह मीटिंग के दौरान खांस नहीं पा रही थी। She could not stop coughing during the meeting. लगातार खांसी के कारण मेरा गला में दर्द हो रहा है। My throat hurts because of the constant coughing. लगातार खांसी के कारण मेरे गला में दर्द हो रहा है। My throat hurts because of the constant coughing. उसने ठंडा पानी पीने के बाद खांसी शुरू कर दी। She started coughing after drinking cold water. उसने ठंडा पानी पीने के बाद खांसी शुरू कर दी।
She started coughing after drinking cold water. मैंने फुटबॉल खेलते समय अपने पैर को चोट पहुंचाई. I injured my foot while playing soccer. मैंने फुटबॉल खेलते समय अपने पैर को चोट पहुंचाई. I injured my foot while playing soccer. वह शेल्फ तक पहुंचने के लिए अपनी उंगलियों के बल खड़ा हुआ. He stood on his tiptoes to reach the shelf. वह शेल्फ तक पहुंचने के लिए अपनी उंगलियों के बल खड़ा हुआ. He stood on his tiptoes to reach the shelf. उसने बैठते समय अपने पैरों को क्रॉस किया. She crossed her legs while sitting. उसने बैठते समय अपने पैरों को क्रॉस किया. She crossed her legs while sitting. वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था. He sat cross-legged on the floor. वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था. He sat cross-legged on the floor. मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पैर में दर्द है. I can't walk because I have a sore foot. मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पैर में दर्द है. I can't walk because I have a sore foot. बच्चा लंगड़ा कर चल रहा था. The child was walking with a limp. बच्चा लंगड़ा कर चल रहा था. The child was walking with a limp. तूफान पहाड़ों के पीछे से आया. The storm came from behind the mountains. तूफान पहाड़ों के पीछे से आया. The storm came from behind the mountains. वह पर्दे के पीछे खड़ी थी. She stood behind the curtain. वह पर्दे के पीछे खड़ी थी. She stood behind the curtain. मैंने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना. I heard someone calling from behind. मैंने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना. I heard someone calling from behind. मुझे अंधेरे में पीछे देखने से डर लगता था. I was scared to look behind in the dark. मुझे अंधेरे में पीछे देखने से डर लगता था. I was scared to look behind in the dark. उसने किराने का सामान भरा हुआ थैला उठाया. She carried a bag full of groceries. उसने किराने का सामान भरा हुआ थैला उठाया. She carried a bag full of groceries. उसके पास एक बड़ा थैला है जिसमें वह अपनी सारी चीज़ें रखती है. She has a big bag for carrying all her things. उसके पास एक बड़ा थैला है जिसमें वह अपनी सारी चीज़ें रखती है. She has a big bag for carrying all her things. थैला कार में छोड़ दिया गया था. The bag was left in the car. थैला कार में छोड़ दिया गया था. The bag was left in the car. उसने थैला खोला ताकि उसके अंदर की चीज़ें देख सके. He opened the bag to check its contents. उसने थैला खोला ताकि उसके अंदर की चीज़ें देख सके. He opened the bag to check its contents. वह टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है. She is sitting at the table working on her laptop. वह टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है. She is sitting at the table working on her laptop. उसे शाम को आग के पास बैठकर समय बिताना पसंद है. She enjoys sitting by the fire in the evening. उसे शाम को आग के पास बैठकर समय बिताना पसंद है. She enjoys sitting by the fire in the evening. वह टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रही थी. She was sitting at the table eating dinner. वह टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रही थी. She was sitting at the table eating dinner. मैं तुम्हें एक बार घर पहुंचकर कॉल करूंगा. I will call you once I reach home. मैं तुम्हें एक बार घर पहुंचकर कॉल करूंगा. I will call you once I reach home. क्या आप कृपया वह एक बार और दोहरा सकते हैं? Can you please repeat that once more? क्या आप कृपया वह एक बार और दोहरा सकते हैं? Can you please repeat that once more? उसने मीटिंग के दौरान एक बार मुझसे मुस्कुराकर बात की. She smiled at me once during the meeting. उसने मीटिंग के दौरान एक बार मुझसे मुस्कुराकर बात की.
She smiled at me once during the meeting. एक बार जब बारिश रुक जाएगी हम टहलने जा सकते हैं. Once the rain stops, we can go for a walk. एक बार जब बारिश रुक जाएगी हम टहलने जा सकते हैं. Once the rain stops, we can go for a walk. मैंने वह फिल्म एक बार देखी है, अब मुझे वह पसंद नहीं आई. I have seen that movie once and did not like it. मैंने वह फिल्म एक बार देखी है, अब मुझे वह पसंद नहीं आई. I have seen that movie once and did not like it. पार्क के चारों तरफ लोग थे. There were people all around the park. पार्क के चारों तरफ लोग थे. There were people all around the park. हम चारों दिशा से पक्षियों की आवाज़ सुन सकते थे. We could hear the sound of birds from all directions. हम चारों दिशा से पक्षियों की आवाज़ सुन सकते थे. We could hear the sound of birds from all directions. कमरा चारों तरफ से धुएं से भरा हुआ था. The room was filled with smoke from every direction. कमरा चारों तरफ से धुएं से भरा हुआ था. The room was filled with smoke from every direction. आप पहाड़ी की चोटी से चारों तरफ नदी देख सकते हैं. You can see the river from all around the hilltop. आप पहाड़ी की चोटी से चारों तरफ नदी देख सकते हैं. You can see the river from all around the hilltop. मुझे पढ़ने के लिए अपना चश्मा पहनना पड़ता है. I need to wear my glasses to read. मुझे पढ़ने के लिए अपना चश्मा पहनना पड़ता है. I need to wear my glasses to read. मैंने कल अपना चश्मा तोड़ दिया. I broke my glasses yesterday. मैंने कल अपना चश्मा तोड़ दिया. I broke my glasses yesterday. उसने अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखें मल ली. He took off his glasses and rubbed his eyes. उसने अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखें मल ली. He took off his glasses and rubbed his eyes. यह चश्मा मेरी नाक पर बहुत कसकर है. These glasses are too tight on my nose. यह चश्मा मेरी नाक पर बहुत कसकर है. These glasses are too tight on my nose. मैंने झाड़ी में एक सांप को छिपते हुए देखा. I saw a snake hiding in the bush. मैंने झाड़ी में एक सांप को छिपते हुए देखा. I saw a snake hiding in the bush. उसने झाड़ी से कुछ फूल तोड़े. She picked some flowers from the bush. उसने झाड़ी से कुछ फूल तोड़े. She picked some flowers from the bush. उन्हें झाड़ी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना मिला. They found a hidden treasure under the bush. उन्हें झाड़ी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना मिला. They found a hidden treasure under the bush. वह चलते हुए झाड़ी से खरोंच खा गई. She got a scratch from the bush while walking. वह चलते हुए झाड़ी से खरोंच खा गई. She got a scratch from the bush while walking. झाड़ी के चारों ओर कई कीड़े भिनभिना रहे थे. There were many insects buzzing around the bush. झाड़ी के चारों ओर कई कीड़े भिनभिना रहे थे. There were many insects buzzing around the bush. वे झाड़ी के पीछे छिप गए ताकि उन्हें देखा ना जा सके. They hid behind the bush to avoid being seen. वे झाड़ी के पीछे छिप गए ताकि उन्हें देखा ना जा सके. They hid behind the bush to avoid being seen. उसने पार्टी में काले रंग की पैंट पहनी. He wore black pants to the party. उसने पार्टी में काले रंग की पैंट पहनी. He wore black pants to the party. जो पैंट आपने मुझे दी वह ठीक से फिट नहीं हो रही है. The pants you gave me don't fit properly. जो पैंट आपने मुझे दी वह ठीक से फिट नहीं हो रही है. The pants you gave me don't fit properly. ये पैंट गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है. These pants are perfect for the summer season. ये पैंट गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है. These pants are perfect for the summer season.
वह हर सुबह योग करती है ताकि वह फिट रह सके। शी डज योगा एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट। वह हर सुबह योग करती है ताकि वह फिट रह सके। शी डज योगा एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट। हम हमेशा छुट्टियों में सुबह के समय परिवार का फ़ोटो खींचते हैं। वी ऑलवेज टेक अ फैमिली फ़ोटो इन द मॉर्निंग ऑन हॉलीडेज़। हम हमेशा छुट्टियों में सुबह के समय परिवार का फ़ोटो खींचते हैं। वी ऑलवेज टेक अ फैमिली फ़ोटो इन द मॉर्निंग ऑन हॉलीडेज़। मुझे आलू पकाने से पहले छीलने होंगे। आई नीड टू पील द पोटैटोज़ बिफोर कुकिंग। मुझे आलू पकाने से पहले छीलने होंगे। आई नीड टू पील द पोटैटोज़ बिफोर कुकिंग। मैंने गलती से गलत फल छील दिया। आई एक्सीडेंटली पील्ड द रॉन्ग फ्रूट। मैंने गलती से गलत फल छील दिया। आई एक्सीडेंटली पील्ड द रॉन्ग फ्रूट। केले का छिलका कचरे में फेंक दिया गया। द बनाना पील वॉज थ्रोन इन द ट्रैश। केले का छिलका कचरे में फेंक दिया गया। द बनाना पील वॉज थ्रोन इन द ट्रैश। बोतल पर लगा लेबल छिलने लगा था। द लेबल ऑन द बॉटल वॉज पीलिंग ऑफ। बोतल पर लगा लेबल छिलने लगा था। द लेबल ऑन द बॉटल वॉज पीलिंग ऑफ। कांच पर लगे उंगलियों के निशान मुख्य सबूत हैं। द फिंगरप्रिंट्स ऑन द ग्लास आर की एविडेंस। कांच पर लगे उंगलियों के निशान मुख्य सबूत हैं। द फिंगरप्रिंट्स ऑन द ग्लास आर की एविडेंस। उसने घटना का सबूत देने के लिए तस्वीर दिखाई। शी शोड द फोटोग्राफ एज एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। उसने घटना का सबूत देने के लिए तस्वीर दिखाई। शी शोड द फोटोग्राफ एज एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। कार घर के पीछे पार्क की गई है। द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। कार घर के पीछे पार्क की गई है। द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहती है। शी इज़ ऑलवेज बिहाइंड इन हर स्टडीज़। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहती है। शी इज़ ऑलवेज बिहाइंड इन हर स्टडीज़। मैंने पर्दे के पीछे एक परछाई को हिलते हुए देखा। आई सॉ अ शैडो मूविंग बिहाइंड द कर्टेन। मैंने पर्दे के पीछे एक परछाई को हिलते हुए देखा। आई सॉ अ शैडो मूविंग बिहाइंड द कर्टेन। स्कूल के पीछे वाली सड़क निर्माणाधीन है। द रोड बिहाइंड द स्कूल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। स्कूल के पीछे वाली सड़क निर्माणाधीन है। द रोड बिहाइंड द स्कूल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। किराना दुकान पोस्ट ऑफिस के बगल में है। द ग्रोसरी स्टोर इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। किराना दुकान पोस्ट ऑफिस के बगल में है। द ग्रोसरी स्टोर इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। अस्पताल के बगल में एक स्कूल है। देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। अस्पताल के बगल में एक स्कूल है। देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। हम ताजगी के लिए खिड़की के बगल में बैठ गए। वी सैट बिसाइड द विंडो टू गेट सम फ्रेश एयर। हम ताजगी के लिए खिड़की के बगल में बैठ गए। वी सैट बिसाइड द विंडो टू गेट सम फ्रेश एयर। मैंने उसे सड़क के बगल में चलते हुए देखा। आई सॉ हर वॉकिंग बिसाइड द रोड। मैंने उसे सड़क के बगल में चलते हुए देखा। आई सॉ हर वॉकिंग बिसाइड द रोड। मुझे समुद्र तट पर एक दिल के आकार का कंकड़ मिला। आई फाउंड अ हार्ट शेप्ड पेबल ऑन द बीच। मुझे समुद्र तट पर एक दिल के आकार का कंकड़ मिला। आई फाउंड अ हार्ट शेप्ड पेबल ऑन द बीच। मैंने गलती से एक तेज कंकड़ पर कदम रख लिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ शार्प पेबल। मैंने गलती से एक तेज कंकड़ पर कदम रख लिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ शार्प पेबल। मैंने आज सुबह खिड़की के बाहर एक चिड़िया देखी। आई सॉ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह खिड़की के बाहर एक चिड़िया देखी। आई सॉ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो दिस मॉर्निंग। जैसे ही खिड़की खुली चिड़िया उड़ गई। द बर्ड फ्लू अवे एज सुन एज द विंडो ओपनड। जैसे ही खिड़की खुली चिड़िया उड़ गई। द बर्ड फ्लू अवे एज सुन एज द विंडो ओपनड।
मैंने खिड़की खोली ताकि चिड़िया अंदर आ सके। आई ओपन द विंडो टू लेट द बर्ड इन। मैंने खिड़की खोली ताकि चिड़िया अंदर आ सके। आई ओपन द विंडो टू लेट द बर्ड इन। चिड़िया खिड़की के पास पेड़ पर वापस उड़ गई। द बर्ड फ्लू बैक टू द ट्री नियर द विंडो। चिड़िया खिड़की के पास पेड़ पर वापस उड़ गई। द बर्ड फ्लू बैक टू द ट्री नियर द विंडो। लंबी सैर के बाद मैं थक गया। आई बिकेम टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। लंबी सैर के बाद मैं थक गया। आई बिकेम टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इट हैज़ बिकम टू लेट टू गो नाउ। अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इट हैज़ बिकम टू लेट टू गो नाउ। आज हवा तेज चल रही है। द विंड इज़ ब्लोइंग स्ट्रांगली टुडे। आज हवा तेज चल रही है। द विंड इज़ ब्लोइंग स्ट्रांगली टुडे। हवा इतनी तेज थी कि उसने पेड़ को गिरा दिया। द विंड वॉज सो स्ट्रांग दैट इट नॉक्ड ओवर द ट्री। हवा इतनी तेज थी कि उसने पेड़ को गिरा दिया। द विंड वॉज सो स्ट्रांग दैट इट नॉक्ड ओवर द ट्री। हवा ने कागज़ों को मेज से उड़ा दिया। द विंड ब्लू द पेपर्स ऑफ द टेबल। हवा ने कागज़ों को मेज से उड़ा दिया। द विंड ब्लू द पेपर्स ऑफ द टेबल। तेज हवा के कारण छत उड़ गई। द स्ट्रांग विंड काउज्ड द रूफ टू फ्लाई ऑफ। तेज हवा के कारण छत उड़ गई। द स्ट्रांग विंड काउज्ड द रूफ टू फ्लाई ऑफ। हमें खिड़कियां बंद करनी चाहिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। वी शुड क्लोज द विंडोज़ बिकॉज द विंड इज़ टू स्ट्रांग। हमें खिड़कियां बंद करनी चाहिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। वी शुड क्लोज द विंडोज़ बिकॉज द विंड इज़ टू स्ट्रांग। सफाई प्रक्रिया के बाद सड़कें बहुत साफ है। द स्ट्रीट्स आर वेरी क्लीन आफ्टर द क्लीनिंग प्रोसेस। सफाई प्रक्रिया के बाद सड़कें बहुत साफ है। द स्ट्रीट्स आर वेरी क्लीन आफ्टर द क्लीनिंग प्रोसेस। सफाई कर्मचारी जल्द ही दफ्तर की सफाई करने आएंगे। द क्लीनिंग स्टाफ विल अराइव सून टू क्लीन द ऑफिस। सफाई कर्मचारी जल्द ही दफ्तर की सफाई करने आएंगे। द क्लीनिंग स्टाफ विल अराइव सून टू क्लीन द ऑफिस। सफाई के बाद घर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। द हाउस लुक्स स्पॉटलेस आफ्टर द क्लीनिंग। सफाई के बाद घर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। द हाउस लुक्स स्पॉटलेस आफ्टर द क्लीनिंग। उसने फर्श की सफाई करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। ही यूज्ड अ ब्रूम टू क्लीन द फ्लोर। उसने फर्श की सफाई करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। ही यूज्ड अ ब्रूम टू क्लीन द फ्लोर। वह कपड़े से खिड़कियां साफ कर रहा है। ही इज़ क्लीनिंग द विंडोज़ विथ अ क्लोथ। वह कपड़े से खिड़कियां साफ कर रहा है। ही इज़ क्लीनिंग द विंडोज़ विथ अ क्लोथ। मैं अभी थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ लिटिल डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। मैं अभी थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ लिटिल डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। समाचार सुनने के बाद वह परेशान हो गई। शी बिकेम एंक्शियस आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। समाचार सुनने के बाद वह परेशान हो गई। शी बिकेम एंक्शियस आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रबल यू बट आई नीड योर हेल्प। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रबल यू बट आई नीड योर हेल्प। आज तापमान अचानक बढ़ गया है। द टेम्परेचर हैज़ राइजन शार्पली टुडे। आज तापमान अचानक बढ़ गया है। द टेम्परेचर हैज़ राइजन शार्पली टुडे। स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैज़ इंक्रीज्ड। स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैज़ इंक्रीज्ड। इलेक्ट्रिक कारों की मांग में काफ़ी वृद्धि हो गई है।
द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। इलेक्ट्रिक कारों की मांग में काफ़ी वृद्धि हो गई है। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। हाल के महीनों में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट मंथ्स। हाल के महीनों में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट मंथ्स। वह बचपन में अंधेरे से डरती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। वह बचपन में अंधेरे से डरती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। काले बादलों ने एक आंधी के आने का संकेत दिया। द डार्क क्लाउड सिग्नल्ड एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। काले बादलों ने एक आंधी के आने का संकेत दिया। द डार्क क्लाउड सिग्नल्ड एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। वह अंधेरे जंगल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। ही फेल्ट लॉस्ट इन द डार्क फॉरेस्ट। वह अंधेरे जंगल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। ही फेल्ट लॉस्ट इन द डार्क फॉरेस्ट। मुझे अंधेरी रात की शांति पसंद है। आई लव द पीसफुलनेस ऑफ द डार्क नाइट। मुझे अंधेरी रात की शांति पसंद है। आई लव द पीसफुलनेस ऑफ द डार्क नाइट। उसे सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में पढ़ना पसंद है। ही इंजॉयज रीडिंग इन द डार्क विथ जस्ट अ कैंडल। उसे सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में पढ़ना पसंद है। ही इंजॉयज रीडिंग इन द डार्क विथ जस्ट अ कैंडल। अंधेरा जंगल अजीब आवाज़ों से भरा था। द डार्क फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। अंधेरा जंगल अजीब आवाज़ों से भरा था। द डार्क फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। लंबे भाषण का उद्देश्य टीम को प्रेरित करना था। द लॉन्ग स्पीच वॉज इंटेंडेड टू मोटिवेट द टीम। लंबे भाषण का उद्देश्य टीम को प्रेरित करना था। द लॉन्ग स्पीच वॉज इंटेंडेड टू मोटिवेट द टीम। एक लंबे भाषण की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्रिपेयरिंग अ लॉन्ग स्पीच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एक लंबे भाषण की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्रिपेयरिंग अ लॉन्ग स्पीच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। उसने सब्जियां काटते समय अपनी उंगली काट ली। शी कट हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। उसने सब्जियां काटते समय अपनी उंगली काट ली। शी कट हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा। दे कट द केक टू सेलिब्रेट। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा। दे कट द केक टू सेलिब्रेट। उसने फंसे हुए जानवर को आज़ाद करने के लिए रस्सी काट दी। शी कट द रोप टू फ्री द ट्रैप्ड एनिमल। उसने फंसे हुए जानवर को आज़ाद करने के लिए रस्सी काट दी। शी कट द रोप टू फ्री द ट्रैप्ड एनिमल। शोर अचानक बंद हो गया। द नॉइज़ वॉज कट ऑफ सडनली। शोर अचानक बंद हो गया। द नॉइज़ वॉज कट ऑफ सडनली। धन की कमी के कारण प्रोजेक्ट को काट दिया गया। द प्रोजेक्ट वॉज कट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। धन की कमी के कारण प्रोजेक्ट को काट दिया गया। द प्रोजेक्ट वॉज कट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। उसने एहसास नहीं हुआ कि उसका रुमाल गंदा है। ही डिड नॉट रियलाइज हिज हैंकरचीफ वॉज डर्टी। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका रुमाल गंदा है। ही डिड नॉट रियलाइज हिज हैंकरचीफ वॉज डर्टी। उसने मुझे गलती से एक गंदा रुमाल दिया। शी हैंडेड मी अ डर्टी हैंकरचीफ बाय मिस्टेक। उसने मुझे गलती से एक गंदा रुमाल दिया। शी हैंडेड मी अ डर्टी हैंकरचीफ बाय मिस्टेक। उसने अपने चेहरे को गंदे रुमाल से पोंछा। ही वाइप्ड हिज फेस विथ अ डर्टी हैंकरचीफ। उसने अपने चेहरे को गंदे रुमाल से पोंछा। ही वाइप्ड हिज फेस विथ अ डर्टी हैंकरचीफ। मैंने बैग किताबों से भर दिया।
आई फिल्ड द बैग विथ बुक्स। मैंने बैग किताबों से भर दिया। आई फिल्ड द बैग विथ बुक्स। बैग इतना भरा हुआ था कि वह बंद नहीं हो सका। द बैग वॉज सो फुल दैट इट कुड नॉट क्लोज। बैग इतना भरा हुआ था कि वह बंद नहीं हो सका। द बैग वॉज सो फुल दैट इट कुड नॉट क्लोज। अपने बैग में पानी की बोतलें भरना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू फिल योर बैग विथ वाटर बॉटल्स। अपने बैग में पानी की बोतलें भरना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू फिल योर बैग विथ वाटर बॉटल्स। उसने अपने हैंड बैग में मेकअप की चीज़ें भर दी। शी फिल्ड हर हैंड बैग विथ मेकअप आइटम्स। उसने अपने हैंड बैग में मेकअप की चीज़ें भर दी। शी फिल्ड हर हैंड बैग विथ मेकअप आइटम्स। मुझे ठंड के लिए एक भारी जैकेट चाहिए। आई नीड अ हेवियर जैकेट फॉर द कोल्ड। मुझे ठंड के लिए एक भारी जैकेट चाहिए। आई नीड अ हेवियर जैकेट फॉर द कोल्ड। भारी कोट ने मुझे बर्फ़ के तूफान के दौरान गर्म रखा। द हेवी कोट केप्ट मी वार्म ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म। भारी कोट ने मुझे बर्फ़ के तूफान के दौरान गर्म रखा। द हेवी कोट केप्ट मी वार्म ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म। आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन। कृपया रात के खाने के लिए टेबल सजाएं। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर डिनर। कृपया रात के खाने के लिए टेबल सजाएं। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर डिनर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टेबल हटाने में? कैन यू हेल्प मी मूव द टेबल? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टेबल हटाने में? कैन यू हेल्प मी मूव द टेबल? उसे खाने के लिए गोल टेबल पसंद है। शी प्रेफर्स अ राउंड टेबल फॉर डाइनिंग। उसे खाने के लिए गोल टेबल पसंद है। शी प्रेफर्स अ राउंड टेबल फॉर डाइनिंग। टेबल एक महत्वपूर्ण फर्नीचर का हिस्सा है। द टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर। ट्रांसलेट इट। वे बाहर खेल रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।